امتحان میں نقل نہ کرنا الفاظ پر مضمون تعارف امتحان زندگی کے اہم لمحات میں سے ایک یا نہ صرف ہمارے علمی علم کا پیمانہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے کردار محنت نظم و ضبط اور ایمانداری کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ آج کل کے مقابلہ جاتی دور میں اکثر طلباء نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف شارٹ کٹس اپنانا شروع کر دیے ہیں جن میں سے نقل چیٹنگ سب سے زیادہ عام اور خطرناک ہے۔ یہ مضمون اس بات کو مفصل انداز میں بیان کرے گا کہ امتحان میں نقل نہ کرنا کیوں ضروری ہے، نقل کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اخلاقی اور دینی پہلو کیا ہیں اور طلباء کو نقل سے بچنے کے عملی طریقے کون سے ہیں۔ آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حقیقی کامیابی صرف ایمانداری، محنت اور مستقل مزاجی سے ممکن ہے۔ نقل کیا ہے؟ نقل کا مطلب محض امتحانی سوالات کے جوابات کسی دوسرے سے لکھوانا یا چھپ کر دیکھنا نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام عمل شامل ہیں جو کسی طالب علم کو اس کے ذاتی علم اور محنت کے بغیر بہتر نمبرات حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نقل کی شکلیں مختلف ہیں۔ دوست سے جواب لکھوانا، موبائل یا چھوٹے نوٹس استعمال کرنا، کسی اور کے پیپر کو دیکھ لینا، اساتذہ کے سوالات کے نمبروں کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنا۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی نقل کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں، جیسے آن لائن امتحانات میں دھوکے بازی یا چیٹ بوکس کا استعمال۔ تاہم فرق واضح ہے، جب آپ اپنے علم اور محنت کے بغیر کسی نتیجے کو حاصل کرتے ہیں تو وہ نقل ہے کے اسباب نقل کرنے والے طلباء کے ذہن میں مختلف عوامل کا فرما ہوتے ہیں۔ ایک، دباؤ اور توقعات۔ والدین، اساتذہ اور معاشرہ اکثر اعلیٰ نمبروں کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ دباؤ بچوں کو شارٹ کٹس کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ دو، تیاری کی کمی۔ اگر طالب علم نے وقت پر پڑھائی نہ کی ہو، مناسب توجہ نہ دی ہو تو وہ نقل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تین، خوف ناکامی۔ بعض اوقات ناکامی کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ طالب علم نقل کو واحد حل سمجھ لیتا ہے۔ چار، نمونہ سازی۔ جب اسکول یا کالج میں بعض طلباء بارہا نقل کرتے ہیں اور انہیں پکڑا نہیں جاتا، سخت نتائج نہیں سنے جاتے تو یہ عمل عام ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پانچ، غلطی سے عادت بن جانا۔ اگر کبھی کبھی نقل سے کامیابی مل جائے تو وہ عمل عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نقل کے اخلاقی اور دینی نقصانات۔ نقل نہ صرف تعلیمی بلکہ اخلاقی اور دینی لحاظ سے بھی دال طور پر غلط ہے۔ ایک، ایمانداری کا نقصان۔ نقل ایمانداری کے اصول کے خلاف ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ایمانداری ہوتی ہے۔ جب فرد ایماندار نہیں رہتا تو اس کا سماجی اعتبار کمزور ہوتا ہے۔ دو، خدا کے سامنے ذمہ داری۔ دینی نقطہ نظر سے بھی نقل حرام اور معیوب ہے۔ اسلام میں سچائی اور امانت کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ نقل کرنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے جو دینی احکام کے منافی ہے۔ ذاتی وقار کی کمی۔ اگر کسی کی کامیابی نقل کے ذریعے ہو تو اس کی عزت اور وقار کمزور پڑ جاتا ہے، سچا سامنے آنے پر رسوائی ہوتی ہے اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ چار، مثبت کردار کی کمی۔ نقل کرنے والا فرد مسائل کا سامنا کرنے، محنت کرنے اور غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ یہ خصوصیات زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری تعلیم و پیشہ ورانہ نقصانات کے فوری فوائد بظاہر دکھائی دے سکتے ہیں، مثلاً اچھے نمبر، سرٹیفکیٹ یا پیپر پاس ہونا، مگر طویل مدت میں اس کے سنگین نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ایک، علمی کمزوری۔ نقل کرنے والا طالب علم اصل علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ یہ نقصان مستقبل میں تب ظاہر ہوتا ہے جب حقیقی زندگی یا پیشہ ورانہ شعبے میں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دو، قابلیت کا فقدان۔ امتحانات صرف نمبر دینے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ قابلیت اور فیصلہ سازی کی جانچ بھی ہوتے ہیں۔ نقل کرنے والا فرد حقیقی قابلیت میں کمزور ہوتا ہے جو آگے چل کر اس کے کیریئر کو متاثر کرتا ہے۔ تین، اعتماد میں کمی۔ جب فرد خود کو کمزور ثابت کرتا ہے تو اس کا خود اعتمادی متاثر ہوتا ہے۔ اصل کامیابی جب محنت سے ملتی ہے تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، مگر نقل سے حاصل شدہ بجائے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ چار، قانونی اور ادارتی نتائج۔ متعدد تعلیمی ادارے نقل پر سخت کارروائی کرتے ہیں جس میں اسناد کی منسوخی، داخلے کی پابندی، احاطہ کے نکالے جانے تک کے اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نتائج مستقبل میں تعلیمی اور پیشہ ورانہ مواقع کو محدود کر سکتے ہیں۔ معاشرتی اور اقتصادی اثرات۔ نقل کا اثر فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ ایک، معاون تعلیم کا زوال۔ جب بڑے پیمانے پر نقل عام ہو جائے تو تعلیمی معیار بگڑ جاتا ہے، ادارے اپنے مقاصد اور معیار کھو دیتے ہیں اور معاشرہ کم ماہر کاریگر پیدا کرتا ہے۔ دو، غلط تقرریاں اور ترقیاں۔ اگر لوگوں کی قابلیت نقل کے ذریعے جانچی جائے تو غیر قابلیت
رات کو اہم ذمہ داریاں مل سکتی ہیں جس کے نتیجے میں پیشہ ورانہ شعبے متاثر ہوتے ہیں اور معاشی کارکردگی کم ہو سکتی ہے۔ 3 اعتماد کا بحران۔ جب کسی معاشرے میں نقل عام ہو تو اداروں اور امتحانی نظام پر اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ بیرونی سرمایہ کار، تعلیمی شراکت دار اور ملازمین اس نظام کو ناقص سمجھتے ہیں۔ والدین، اساتذہ اور اداروں کا کردار۔ نقل کے خاتمے کے لیے صرف طالب علم کا کردار کافی نہ، والدین، اساتذہ اور تعلیمی ادارے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک والدین کی تربیت۔ والدین کو بچوں کی مناسب رہنمائی کرنی چاہیے، غیر حقیقی توقعات سے پرہیز کریں اور بچوں کو محنت کی اہمیت سکھائیں۔ امتحان کے نتائج سے زیادہ ان کی کوشش اور عزم کی تعریف کریں۔ 2 اساتذہ کی نگرانی اور رہنمائی۔ اساتذہ کو طلبہ کی تیاری کے لیے زیادہ مؤثر تر تدریس اپنانا چاہیے۔ امتحانات کے دوران منصفانہ نگرانی اور نقل سے بچاؤ کے اقدامات ضروری ہیں۔ ساتھ ہی اساتذہ کو طلبہ کو اخلاقی نقطہ نظر سے بھی تربیت دینی چاہیے۔ 3 ادارتی پالیسیاں۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو نقل کے خلاف واضح قوانین بنانی چاہئیں اور ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امتحان کے طریقہ کار میں بہتری لائی جائے۔ مثلاً سوالی پیٹرن میں تبدیلی، اوپن بک، پروجیکٹ بیسڈ اسسمنٹ اور آن لائن امتحانات میں محفوظ نظام کا استعمال۔ عملی حکمت عملی۔ نقل سے بچنے کے طریقے۔ طلبہ خود بھی نقل سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتے۔ چند عملی مشورے درج ذیل ہیں۔ 1 منظم مطالعہ اور شیڈول۔ ہر روز ایک مقررہ وقت پر پڑھائی کرچے، چھوٹے حصوں میں کام کریں تاکہ دباؤ کم رہے۔ 2 نوٹس بنانے کی عادت۔ خود کے نوٹس بنائیں۔ جب آپ کسی موضوع کو اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں تو یادداشت بہتر ہوتی ہے اور نقل کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ 3 پریکٹس ٹیسٹ۔ پرانی مشقی کاغذات اور پریکٹس ٹیسٹ حل کریں۔ امتحان کی نوعیت اور سوالات کے انداز سے واقفیت بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ 4 مطالعہ گروپ کی تشکیل۔ دوستوں کے ساتھ مطالعہ گروپ بنائیں مگر گروپ کا مقصد سمجھنے اور سیکھنے پر ہو، نقل پر نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال سے علم مضبوط ہوتا ہے۔ 5 اسکیم اور نوٹس کارڈز۔ اہم نکات اور فارمولے نوٹس کارڈز پر لکھ لا، امتحان سے پہلے تیز نظر ثانی میں مدد دیتے ہیں۔ 6 وقت کی منصوبہ بندی۔ امتحانی پیریڈ میں ہر سوال کو دینے کے لیے وقت مقرر کریں تاکہ اب گھبراہٹ میں نہ کریں۔ 7 ذہنی اور جسمانی طرز زندگی۔ مناسب نیند، صحت مند خوراک اور ورزش ذہنی طاقت بڑھاتے ہیں جو امتحان میں بہتر کارکردگی کی ضمانت ہیں۔ 8 سوالات پوچھنے کی ہمت۔ اگر کوئی موضوع سمجھ نہ آئے تو اساتذہ سے ضرور پوچھے، بلاجے کا مدد لینے سے آپ کا خوف کم ہوگا اور نقل کی لالچ کم ہوگی۔ اساتذہ اور امتحانی نظام کی اصلاحات۔ نقل کے مسائل کو کم کرنے کے لیے تدریسی طریقوں اور امتحانی نظام میں بھی تبدیلیاں ضروری ہیں۔ 1 روایتی امتحانات کے علاوہ اسسمنٹ۔ صرف رٹ لینا ختم کر کے پروجیکٹ ورک آؤٹ پٹ پر مبنی اسسمنٹ اور عملی کام زیادہ شامل کریں تاکہ طالب علم کا حقیقی علم اور فہم آزمایا جائے۔ سوالات کے انداز میں تنوع۔ سوالی پیٹرن میں تبدیلی، تحلیلی اور تنقیدی سوچ مانگنے والے سوال شامل کریں جو صرف رٹا نقل سے حل نہ ہو سکے۔ 3 شفاف اور منصفانہ پالیسی۔ نقل کے خلاف واضح اصول اور سزاؤں کا اعلان کریں اور ان پر سختی سے عمل کریں تاکہ زبردستی روکا جا سکے۔ 4 ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال۔ آن لائن امتحانات میں محفوظ سافٹ ویئر اور نگرانی کے نظام کا استعمال کیا جائے تاکہ نقل کے مواقع کم ہوں۔ حقیقی کامیابی کا مفہوم۔ کامیابی کا مطلب صرف اچھے نمبر، ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے علم، مہارت اور اخلاقی بنیادیں تیار کی ہوں۔ کہ وقتی طور پر کامیابی دکھا سکتی ہے مگر اصل کامیابی وہ ہے جو محنت، استقامت اور ایمانداری سے حاصل ہو۔ اس طرح کی کامیابی دیر پا قابل بھروسہ اور قابل فخر ہوتی ہے۔ اشاعت اور معاشرتی شعور۔ معاشرتی سطح پر بھی ضروری ہے نقل کے خلاف شعور اجاگر کیا جائے۔ میڈیا، کمیونٹی لیڈرز اور علمی ادارے مل کر اس مہم کو آگے بڑھائیں کہ نقل ایک جرم ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نوجوانوں کو رول ماڈل فراہم کریں جو محنت اور ایمانداری کی مثال ہوں۔ حالات کی حساسیت اور ہمدردی۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات طلبہ نقل کی طرف اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ ان مناسب رہنمائی، تعلیمی وسائل اور ذہنی مدد میسر نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں سخت سزا کے بجائے رہنمائی، مشاورت اور مدد فراہم کرنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسکولوں، کاؤنسلنگ سروسز، ٹیوشن پروگرام اور اضافی کلاسز کا اہتمام اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ مختصر کہانی / مثال۔ مختصر سی مثال اس خیال کو واضح کرتی ہے۔ 2 دوست علی اور احمد امتحان کے
दिन करीब आते देखकर परेशान हो जाते। अव्वल ने पूरे सेमेस्टर में मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ाई की थी, जबकि अहमद ने आखिरी लम्हे की मेहनत और नक़ल का रास्ता अपनाया। नतीजा ये हुआ कि मुस्तक़बिल में कामयाब हुआ। खौफ के बावजूद इसने इम्तिहान में सच्चा रास्ता इख्तियार किया और हकीकी इल्म हासिल किया। अहमद को फौरी तौर पर अच्छे नंबर मिले, मगर जब पेशा वराना ज़िंदगी में इससे अमली महारत मांगी गई तो वो नाकाम रहा। ये मिसाल वाज़े करती है कि मुख्तसर फ़ायदे तवील नुकसान का बाइस बन सकते हैं। नतीजा आखिर में हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि इम्तिहान में नक़ल ना करना एक इखलाकी, दीनी, तालीमी और मुआशरती ज़रूरत है। नक़ल ना सिर्फ ज़ाती हैसियत को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम और मुआशरे के मेयार को भी गिराता है। वालिदैन, असातिज़ा, इदारे और ख़ुद तलबा मिलकर ऐसी सक़ाफ़त कायम करें जहाँ मेहनत, ईमानदारी और मुस्तक़िल मिजाजी को सराहा जाए। इम्तिहान एक मौका होता है अपनी काबिलियत, मेहनत और ज़ब्त को जाँचने का। इसे चोरी के रास्ते से न गुजरने। कामयाबी तभी मुमकिन है जब हम ईमानदारी के रास्ते पर कायम रहें, क्योंकि इल्म और किरदार वो दौलत है जो कभी चोरी नहीं की जा सकती बल्कि कमाई जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक मुख्तसर तकरीर नतिया बच्चों के लिए आसान ज़ुबान में इखलाकी कहानी भी तैयार कर सकता हूँ। या आप चाहेंगे कि मैं मज़मून का खुलासा निकाल कर नुक्तावार दूँ? उन्वान: इम्तिहान में नक़ल ना करना। एक मुकम्मल मज़मून। मुक़दमा: इम्तिहान ज़िंदगी का वो लहजा है जहाँ तालिब इल्म की मेहनत, तैयारी और ईमानदारी का जायज़ा लिया जाता है। हर दौर में इम्तिहानात ने तालीमी निज़ाम में अहम मकाम रखा है, मगर गुज़िश्ता चंद दहाइयों में नक़ल, चीटिंग एक संजीदा वबा का रूप ले चुकी है जो फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे के मुस्तक़बिल को मुतासिर करती है। ये मज़मून इस अमर की वज़ाहत करेगा कि इम्तिहान में नक़ल क्यों ना करें, इसके मनफी असरात क्या हैं, इसकी वजूहात कौन सी हैं और नक़ल रोकने के मुअस्सिर तरीक़े कौन से। आखिर में हम इखलाकी, मज़हबी और अमली दलाइल पेश करेंगे जो हर तालिब इल्म को दियानतदारी इख्तियार करने की तरगीब देंगे। नक़ल क्या है? नक़ल से मुराद वो तमाम तरीक़े हैं जिनके ज़रिए इम्तिहानी आउटपुट, जो कि तालिब इल्म की ज़ाती मेहनत का नतीजा होना चाहिए, में गैर हकीकी या गैर मुनसिफाना इजाफ़ा किया जाता है। इसमें नोटिस लिख लेना, मोबाइल या किसी दूसरी डिवाइस का इस्तेमाल, दूसरों से जवाब ले लेना, किसी से इम्तिहान करवाना, इम्तिहानी रूल तालीम के बाहर पेशगी मालूमात हासिल करना शामिल हैं। नक़ल की आहिस्ता आहिस्ता हदें तब्दील होती हैं। कभी ये सीधी नक़ल होती है तो कभी उमालियाती हुआ तख्लीकी चालों की सूरत इख्तियार कर लेती है, मगर मकसद हमेशा एक ही होता है, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर हासिल करना। नक़ल करने की वजूहात: नक़ल करने वालों की ज़हनियत समझने के लिए हमें उन मुहर्रिकात को देखना होगा जिनकी बना पर तालिब इल्म इस गलत रास्ते पर चल पड़ता है। एक, दबाव और खौफ, नाकामी। वालिदैन, असातिज़ा और ख़ुद तालिब इल्म के आला तवक्कुआत इम्तिहान की कामयाबी के लिए गैर सेहतमंद दबाव पैदा करते हैं। खौफ, नाकामी बाज़ औक़ात नक़ल के लिए मजबूर कर देता है। 2, नाक़िस तैयारी। बर वक्त पढ़ाई न करना, बुनियादी मज़ामीन न समझना भी नक़ल का सबब बनता है। तालिब इल्म अपनी कमज़ोरी को छुपाना चाहता है तो वो नक़ल का सहारा लेता है। 3, नाकाफ़ी इखलाकी तरबियत। एक ऐसा ख़ानदान तालीमी माहौल जहाँ सच्चाई और ईमानदारी को अहमियत कम दी जाती हो, वो तालिब इल्म को नक़ल की तरफ राग़िब करता है। 4, गैर मुनसिफाना निसाब इम्तिहानी निज़ाम। बाज़ औक़ात इम्तिहानात के ढांचे में खामियाँ इम्तिहानी वसाइल तक अदम मसावी रसाई भी नक़ल को फ़रोग़ देती है। 5, आसान रास्ता की लालच। वक्ती फ़ायदा, एज़ाज़, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तेज़ और आसान रास्ते का इंतखाब भी एक वजह है। नक़ल के ज़ाती नुकसान: नक़ल करना किसी एक लम्हे के फ़ैसले सा हो सकता है, मगर उसके नतीजे में लंबे अरसे तक मनफी असरात रहते हैं। एक, खुद एतमादी का ज़वाल। जब कोई बार बार नक़ल करता है तो उसकी अंदरूनी काबिलियत पर शक बढ़ता है और वो सीखने से दूर हो जाता है। 2, सीखने का नुकसान। इम्तिहान का असल मकसद इल्म और सलाहियत की जांच है। नक़ल करने वाला हकीकी इल्म से महरूम रहता है, जो मुस्तक़बिल में पेशा वराना कारकर्दगी में रुकावट बनता है। 3, ज़िंदगी की मुश्किलात में नाकामी। जब वही शख्स हकीकी दुनिया में चैलेंजेस का सामना करता है तो उसके पास मसला हल करने की सलाहियत नहीं होती, जिससे रोज़गार और ज़ाती तरक्की मुतासिर होती है। आबदी और रूहानी नुकसान। बहुत से लोगों के लिए नक़ल इखलाकी और मजहबी नुक्ताए नज़र से भी गलत है। ये ज़मीर की आवाज़ को दबा देती है और अंदरूनी सुकून ख़त्म कर देती है, क्योंकि समाजी और मुआशरती नुकसान।
नकल न सिर्फ फर्द के लिए नुकसानदेह है बल्कि इसके मुआशरती असरात भी गहरे हैं। एक मावान तालीम में कमी। जब नकल आम हो जाए तो इल्मी मेयार घट जाता है, असातिज़ा और इदारे का एतबार कम होता है और डिग्री की कदर मुतासिर होती है। 2. अदल व इंसाफ का ज़वाल। नकल एक तरह का धोखा है जो मेहनत और ईमानदारी के उसूलों के खिलाफ है। जब इसे नज़रअंदाज किया जाए तो मुआशरती इंसाफ मुतासिर होता है। 3. माशी नुकसान। नाक़िस तालीम याफ्ता मुलाज़िमीन माशी पैदावारी को कम करते हैं, इससे कौम की तरक्की पर मनफी असर पड़ता है। 4. खतरनाक शोबाजात में नाकामी। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह जैसे शुबों में नाकारा अफराद मुआशरती ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका काम बराह रास्त अवाम की सलामती और फलाह व बहबूद से जड़ा होता है। और कानूनी नताइज। बहुत से तालीमी इदारे और कानूनी निज़ाम नकल के खिलाफ वाज़े पॉलिसी रखते हैं। 1. इम्तिहानी कार्ड मनसूखी या नाकामी। तालिब इल्म को फेल करार दिया जा सकता है या इम्तिहान का नतीजा मनसूख किया जा सकता है। 2. इस्कात हैसियत। बार बार की खिलाफ वर्जी पर तालिब इल्म को स्कूल कॉलेज से खारिज भी किया जा सकता है। 3. क्रेडिट और असनाद का ज़िया। स्कॉलरशिप्स, इनामात, अदरजात वापस लिए जा सकते हैं और मुस्तकबिल में दाखिला आ मुलाजमत के मौक़े मुतासिर होते हैं। 4. कानूनी नताइज। बाज़ मुल्कों आ इदारों में संगीन फराड में मुलव्वस होने पर कानूनी कार्रवाई का इम्कानात भी होते हैं। इखलाकी और मजहबी दलाइल। हमारे मजहबी और इखलाकी निज़ाम में सच्चाई और अमानत को बहुत आला मकाम दिया गया है। हर बड़े मजहब में कादही की मजम्मत की गई है। इस्लाम में ईमानदारी और सदाकत का बहुत जोर है। इम्तिहान में नकल की सूरत में न सिर्फ फ़र्द ने अपना ज़मीर मजरू किया बल्कि इसने मुआशरती जिम्मेदारी से भी इन्हिराफ किया। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों को इब्तिदाई मराहिल से ही दियानतदारी की तरबियत दें ताकि वो बड़े होकर इसी उसूल पर अमल करें। नकल के नफसियाती पहलू। नकल करने वाला तालिब इल्म बाज़ औक़ात आर्जी सुकून महसूस करता है, मगर तवील मुद्दती में इसका ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है। दरअसल नकल की आदत खुद को बचाने और गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने का एक मनफी तरीक़ा है। जब नकल पकड़ी जाती है तो शर्मिंदगी, खौफ, रुसवाई और ख़ुद को कमतर महसूस करने का दौर शुरू हो जाता है। ये कैफियत ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में बदल सकती है। नकल कैसे रोकी जाए? अमली हिकमत अमलिया। नकल को रोकने के लिए सिर्फ सज़ा काफ़ी नहीं, मुअस्सिर हिकमत अमली वो है जो जड़ तक जाए और तालिब इल्म के रवैये में तब्दीली लाए। चंद अमली तजावीज़ दर्ज झेल हैं। 1. अच्छा तालीमी माहौल फराहम करें। असातिज़ा को चाहिए कि वो क्लास में ऐसे माहौल को फ़रोग़ दें जहां गलती से सीखने को अहमियत दी जाए, खौफ और तनकीद के बजाय रहनुमाई दी जाए। 2. मुनासिब इम्तिहानी डिज़ाइन। इम्तिहानात में इख्तियारी सवालात, तशरीही सवालात और अमली काम शामिल किए जाएं ताकि सिर्फ हिफ्ज़ से नकल करना मुश्किल हो जाए। शफ़ाफ़ ग्रेडिंग पॉलिसी अपनाई जाए। 3. तालीम व तरबियत। तलबा को वक्त की मुनज़्ज़म तक़सीम, नोटिस बनाने और इम्तिहानी हिकमत अमलियाँ सिखाएं ताकि वो बेहतर तरीक़े से तैयार हो सकें और नकल का सहारा ना लें। 4. वालिदैन की शमूलियत। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए गैर हकीकी तवक्कुआत का बोझ ना बने और मेहनत की कदर सके बचोहे के साथ मुस्बत गुफ्त और शनीद करे बजाय एक मनफी तंबी के। 5. तकनीकी इंतज़ामात। इम्तिहानी हाल में मोबाइल फ़ोन आ दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की मुमानात, कैमरे आ निगरानी का मुअस्सर इंतज़ाम और सेटिंग में तब्दीली जैसी तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। 6. इखलाकी तरबियत और वर्कशॉप्स। स्कूलों और कॉलेजों में अमानत, अखलाकियात और तालीमी सच्चाई के मौजू पर रेगुलर वर्कशॉप्स मुनक़िद की जाए। 7. मुस्बत इनाम। सिर्फ सज़ा देने के बजाय ईमानदारी को फ़रोग़ देने के लिए इनामात और ख़ुसूसी तस्लीमात दी जाएं ताकि ईमानदार तालिब इल्म को हौसला मिले। असातिज़ा और स्कूलों का किरदार। असातिज़ा को न सिर्फ इल्म मुंतकिल करना है बल्कि किरदार साजी का भी अहम फरीज़ा अंजाम देना है। नहीं चाहिए कि वो अपने रवैये और अमल से मिसाल कायम करामतखानात के दौरान शफाफ और मुनसिफाना रवैया अपना तालिब इल्मों के साथ खिले दिल से मसाइल और खुशकियों पर बात करासी कोर्स डिज़ाइन करें जिनमें अमल, कारकर्दगी, प्रोजेक्ट्स और रोज़मर्रा की फ़ालियत पर जोर हो ताकि महज याददाश्त से पास होना मुश्किल हो। वालिदैन की जिम्मेदारी। वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। कुछ अमली इक़दाम। बच्चों को पढ़ाई के लिए मखसूस वक्त और जगह फराहम करामत से
पहले बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव न डालें, बल्कि उनकी हौसला अफजाई कर नशोनुमा के वक्त बच्चों की कामयाबियों और नाकामियों पर मुनासिब रहनुमाई दें। इखलाकी कदरों को घर में रोज़मर्रा की मिसालों के ज़रिए समझें। मौके और मुतबादिल रास्ते कभी कभार तालिब इल्म ये महसूस करता है कि इम्तिहान जीतना ही सब कुछ है। हमें बावर कराना होगा कि ज़िंदगी में कामयाबी के कई रास्ते हैं और एक नाकामी, एक कम नंबर एक इम्तिहान की नाकामी इंसान की ज़िंदगी का आखिरी फैसला नहीं। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में महारत हासिल करना, हुनर सीखना, अस्ताजी ट्रेनिंग करना भी कामयाबी के पायदार रास्ते हैं। स्कॉलरशिप मौके हासिल करने के लिए ईमानदारी बुनियाद बन कर रहती है। नक़ल से हासिल करदा कामयाबी असास में कमज़ोर होती है और देर का फ़ायदा नहीं देती। हकीकी कहानियों से इबरत ऐसा कोई आलमी या मकामी किस्सा जिसमें नक़ल की वजह से किसी को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा हो, बच्चों और नौजवानों के लिए बेहतरीन सबक साबित होता है। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में ऐसे तलबा की कहानियाँ हैं नक़ल के बाद दर्जात नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन वाक़यात की मिसालें नौजवान ज़हनों में ईमानदारी की अहमियत को मजबूत बनाती हैं। इसी तरह ऐसी मिसालें भी हैं जहाँ मेहनती मगर इब्तिदा में कम नंबर लेने वाले तालिब इल्म बाद में शानदार कामयाबी हासिल करते हैं, जो मेहनत और इखलाकी पुख्तगी की जीत को जाहिर करती हैं। नक़ल के खात्मे के लिए जामे हिकमत कामयाब मुदाखलत इस वक्त मुमकिन है जब स्कूल, घर और मुआशरा मिलकर काम करें। चंद निकात: 1. शफाफ पॉलिसी, मुस्बत हौसला अफजाई कवानीन बनाने के साथ साथ ईमानदारी के फ़रोग़ के प्रोग्राम भी चलाएं। 2. तवज्जो बर महारत, निसाब में मसला हल करने, तनकीदी सोच और अमली महारतों को शामिल करें। 3. फौरी मदद, ऐसे तलबा जो बार बार नक़ल की कोशिश करते हैं उनके लिए कोचिंग और मुशावरत के प्रोग्राम रखें ताकि बुनियादी मसाइल हल हों। 4. कम्युनिटी एंगेजमेंट, वालिदैन और मकामी बरादरी को भी शामिल करके तालीमी सकाफ़त में तब्दीली लाना जा। और आखिरी पैगाम, इम्तिहान में नक़ल न करना महज एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये एक आईना है जो हमारे अखलाक, किरदार और मुस्तक़बिल की बुनियाद को दिखाता है। नक़ल एक आर्जी फ़ायदा दे सकती है मगर उसका तवील मुद्दती नुकसान नाकाबिले नज़रअंदाज है। ये न सिर्फ फ़र्द की तरक्की में रुकावट बनती है बल्कि मुआशरे के तालीमी मेयार और अदल व इंसाफ को भी मुतासिर करती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों, शागिर्दों और खुद अपने अंदर ईमानदारी को फ़रोग़ दें, मेहनत की कदर सिखाएं और एक ऐसा तालीमी माहौल बनाएं जहां इल्म की जस्तजू और सच्चाई को इनाम मिले, ना कि धोखाबाजी, कवाक अमली हतमी। मशवरा ये है कि इम्तिहानात को कामयाबी या नाकामी के वाहिद मेयार के तौर पर नहीं देखा जाए। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को चाहिए कि वो हुनर, किरदार और हकीकी सलाहियतों को पहचाने वाले दें और असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों की मेहनत की तारीफ करें और उन्हें गलत रास्तों की तरफ जाने से रोकें। और सबसे बढ़कर हर तालिब इल्म को अपने ज़मीर और मुस्तक़बिल के बारे में सोचना होगा। या वो एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा बनना चाहता है जो ईमानदारी की बुनियादों पर कायम हो, या वो आर्जी नंबरों के पीछे भाग कर बेफा नुकसान उठाएगा। आखिर में एक आसान सी नसीहत: इम्तिहान में नक़ल न करें। ये आपके लिए आसान रास्ता लग सकता है मगर आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला साबित हो सकता है। मेहनत करें, गलतियों से सीखें और ईमानदारी को अपनी मंजिल बनाएं। यही वो रास्ता है जो आपको हकीकी कामयाबी, इत्मीनान क़ल्ब और मुआशरती एहतराम देगा। इम्तिहान में नक़ल न करना एक अहम इखलाकी उसूल है जो न सिर्फ फ़र्द की ज़ाती तरक्की के लिए ज़रूरी है बल्कि मुआशरे की तालीमी सालमियत को बरकरार रखने के लिए भी लाजमी है। जब एक तालिब इल्म नक़ल करता है तो वो आर्जी फ़वाइद के पीछे छप जाता है मगर उसके साथ वो अपने अंदर एक ख़तरनाक खाली पिन छोड़ देता है। इल्म की कमी नक़ल का अमल हकीकत में मेहनत और ईमानदारी की जगह है। आसान मगर नुकसानदेह शॉर्टकट है। इस मज़मून में हम नक़ल के इखलाकी, तालीमी और समाजी नताइज का जायज़ा लेंगे, साथ ही उन अवामिल पर बात करेंगे जो तालिब इल्मों को नक़ल फरमाएं करते हैं और उनके हल भी तजवीज़ करेंगे। सबसे पहले ये समझना अहम है कि नक़ल सिर्फ एक ज़ाती गलती नहीं बल्कि ये तालीमी निज़ाम में एक पेचीदा मसला है। बाज़ औक़ात नक़ल का सबब कमज़ोर निसाब, गैर मौज़ू इम्तिहानी तरीक़े या तालिब इल्मों पर गैर मुनासिब दबाव होता है। वालिदैन, असातिज़ा और तालीमी इदारे सब मिलकर ऐसी हालात पैदा करते हैं जहाँ कामयाबी का ज़ोर सिर्फ नंबरों पर मरकूज़ होता है। यही वजह है कि बाज़ तालिब इल्म ये समझ लेते हैं कि कामयाबी के लिए रास्ता लाज़मी तौर पर नक़ल के ज़रिए मुमकिन है। असल मसला ये है कि अगर हम हालात को बदलने के बजाय सिर्फ अलामात को दूर करने की कोशिश करें तो मसला बरकरार रहेगा। नक़ल की जड़ों तक पहुँचने के लिए हमें मजमूई नुक्ता नज़र इख्तियार करना होगा। नक़ल के इखलाकी पहलू को समझने
लिए हमें ईमानदारी के मानी जानने होंगे। ईमानदारी महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक मुस्तकिल अमल है जिसमें सच्चाई, अपनी गलतियों को कबूल करना और मेहनत की कदर शामिल होती है। जब तालिब इल्म करता है तो वो अपनी ईमानदारी से गद्दारी करता है। इसके नतीजे में एक निहायत संगीन दाखिली नुकसान होता है, खुद एतमादी में कमी और अपनी काबिलियत पर शुबा। ये नुकसान कई बरसों तक इंसान के तालीमी और पेशा वराना सफ़र को मुतासिर कर सकता है। ईमानदार की फितरी कदर को समझना और उसकी परवरिश करना तालीमी निज़ाम का बुनियादी काम होना चाहिए। तालीमी नुक्ता नज़र से नकल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तालिब इल्म हासिल करने के अमल से महरूम रहता है। इम्तिहान का असल मकसद ये जांचना होता है कि तालिब इल्म ने कौन सा इल्म और सलाहियतें हासिल की हैं। जब जवाब नकली तौर पर हासिल किए गए हों तो ये जांच बेमानी हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि तालिब इल्म आला तालीमी इदारों आ मुलाजमत में नाकाम हो सकता है क्योंकि इसके पास दरकार बुनियाद मौजूद नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हकीकी दुनिया में मसाइल को हल करने के लिए सिर्फ हिफ्ज़ करना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए समझ, बोझ, अमली सलाहियत और मंतकी सोच दरकार होती है। समाज तौर पर भी नकल के नताइज बहुत गुस्तरदे हैं। जब मुआशरे में नकल आम हो जाए तो एतमाद का निज़ाम टूट जाता है। मुलाज़मतों और पेशों में अहल अफराद की शनाख्त मुश्किल हो जाती है क्योंकि सर्टिफिकेट या डिग्री का मेयार मशकूक हो जाता है। इस तरह मुआशरा अपने अहम शुबों में नाक़िस कारकर्दगी से दो चार हो सकता है। मसलन तिब, इंजीनियरिंग या कानून जैसे शोबे जिनमें महारत और इल्म की ज़रूरत लाजमी होती है। नाक़िस तरबियत याफ्ता अफराद से अवामी नुकसान, ख़तरात और एतमाद में कमी पैदा हो सकती है जो तवील अलमियाद नुकसानात का बाइस बनती है। नकल के नफसियाती मुहर्रिकात को भी समझना ज़रूरी है। अक्सर तालिब इल्म खौफ, इज़्तिराब और नाकामी के डर की वजह से नकल का इंतखाब करते। अवामखान के हल तलब दबाव, वालिदैन की तवक्कुआत आ मुस्तक़बिल की इंक्वायरियां नौजवानों को परेशान कर देती। आवास हालत में नकल एक फौरी हल के तौर पर सामने आता है, मगर ये समझना ज़रूरी है कि खौफ आ दबाव का हल नकल नहीं बल्कि बेहतर तैयारी और जज्बाती मदद है। तलबा की ज़हनी सेहत, खुद एतमादी और वक्त की मुनासिब मनसूबा बंदी ऐसे मसाइल का बेहतरीन हल है। कई औक़ात तालीमी इदारों की पॉलिसीज़ भी नकल के रुझान को बढ़ा देती हैं। जब इम्तिहानात सिर्फ चंद नंबरों पर मबनी हों और तालिब इल्म के मजमूई मेयार का अंदाज़ा ना लगाया जाए तो नकल का रुझान बढ़ता है। बेहतर तरीका यह है कि असातिज़ा तालिब इल्म की काबिलियत को मुख्तलिफ तरीकों से जांची। प्रोजेक्ट्स, ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशंस और मुसलसल तशखीस के जरिए इससे तलबा को मेहनत की आदत पड़ेगी और नकल के मौक़े कम हों। गेम्स बरा इस किस्म की जांच तलबा की अमली सलाहियतों को भी मजबूत बनाती है। वालिदैन का किरदार भी बहुत अहम है। बाज़ वालिदैन बच्चों की कामयाबी के लिए हद से बढ़कर दबाव डालते हैं या सिर्फ नंबर देखते हैं, जिससे बच्चे खौफजदा होकर नकल करने लगते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की मेहनत और कोशिश की कदर करें, गलतियों को सीखने के तौर पर पेश करें और एक सपोर्टो माहौल फराहम करें। ये एहसास देना कि नाकामी भी सीखने का हिस्सा है बच्चों को नकल से रोकता है। गिरलो माहौल में गुफ्तगू, रहनुमाई और मुस्बत तक़वियत बच्चों की शख्सियत में मजबूती लाती है। असातिज़ा को भी नकल रोकने में फ़आल किरदार अदा करना चाहिए। असातिज़ा मुस्बत अंदाज में तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करें, इम्तिहानी तकनीक सिखाएं और इखलाकी असबाक में ईमानदारी की अहमियत बताएं। इम्तिहानात के दौरान निगरानी के बेहतर तरीक़े अपनाएं जाए, मगर वो तलबा को ऐसे महसूस न कराएं कि उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। नज़्म व ज़ब्त और एहतराम के उसूलों के दरमियान तवाज़ुन होना चाहिए ताकि तलबा खुद से अच्छा बर्ताव करें। असातिज़ा की रहनुमाई अक्सर तालिब इल्मों की सोच और रवैये में नुमायाँ तब्दीली लाती है। नकल के खिलाफ अमली इक़दामात में इम्तिहानी तरतीब और तरीक़े में तब्दीली बहुत अहम है। मसलन सवालात को तब्दील करना, सवालात के ऐसे सीट बनाना जो सिर्फ हिफ्ज़त पर मबनी ना हों बल्कि सोच और तज्ज़िया तलब करें, और ऑनलाइन इम्तिहानात में मुतनव्वे सवालात का इस्तेमाल इसमें मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह इम्तिहानी हाल की तरतीब, कमरा में फासले और डिजिटल आलात की महदूद रसाई नकल की शरह को कम कर सकती है। इम्तिहानी निज़ाम को जदीद और जामे बनाना नकल के इम्कानात को काफ़ी हद तक घटा देता है। टेक्नोलॉजी भी नकल को रोकने में कारगर साबित हो सकती है अगर इसे दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए प्रोक्टरनग सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स में मुतगय्यर सवालात और असाइनमेंट सबमिशन में पिलगुम टूल्स का इस्तेमाल नकल के इम्कानात कम कर सकता है।
ताहम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल इस पर मुकम्मल इन्हिसार में मसाइल पैदा कर सकता है, लिहाजा तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को एक मुआविन आले के तौर पर देखा जाना चाहिए, मुकम्मल हल के तौर पर नहीं। तालीमी इदारे पॉलिसीज़ और इखलाकी ज़वाबित को वाज़े तौर पर नाफिज करें। नकल की सूरत में शफाफ, मुनासिब और तरबियती नौइयत की सज़ा होनी चाहिए। सज़ा का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं, बल्कि तालिब इल्म को समझाना और इसे दोबारा दुरुस्त रास्ते पर लाना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर नकल करने वाले तलबा के लिए इखलाकी तरबियती वर्कशॉप्स, इजाफी असाइनमेंट्स मुशावरत मुफीद साबित हो सकती है। इस तरह का रवैया सज़ा से बढ़कर इस्लाह और रहनुमाई पर मबनी होगा। एक मुस्बत तरीका यह है कि तलबा में खुद एहतिसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए। जब तालिब इल्म खुद को जिम्मेदार महसूस करता है तो नकल से दूर रहता है। हम ऐसे मौक़े फराहम करने चाहिए जहाँ तलबा अपनी सलाहियत दिखाएं। खेल, डिबेटिंग क्लब, मॉडल यौन साइंसी नुमाइशें, ये सरगर्मियाँ न सिर्फ एतमाद बढ़ाती हैं बल्कि तलबा को काफ मजमूई कामयाबी का एहसास देती हैं, जो कि नंबरों से बढ़कर मानी रखता है। इस तरह की मसरूफियात तलबा को ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्किल सिखाने में मदद देती हैं। नकल के खिलाफ मुआशरती मुहिम्मात और आगाही भी बड़ा फ़र्क डाल सकती है। स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार्स, बैनर्स, पोस्टर्स और तालिब इल्मों की जानिब से बनाए गए इखलाकी कार्ड्स इस पैगाम को मजबूती से पहुँचा सकते हैं। ईमानदारी अव्वलीन कदर हिमकाम कम्युनिटी और मुलाजमीन भी इस मुहिम में शामिल हों तो पैगाम वसी पैमाने पर पहुँचेगा। जब एक पूरा मुआशरा इस कदर को अपनाता है तो फ़र्द पर भी असर पड़ता है और वो ईमानदारी को तरजीह देता है। मिसाली किरदार भी अहम है। असातिज़ा, वालिदैन और बड़े भाई बहन जब खुद ईमानदारी का मुज़ाहरा करें तो बच्चे इसी रवैये को अपनाते हैं। अगर तालीमी अमले इदारों में भी नकल के ख़राब रवायात हैं तो इसका असर बरक्स होगा। लिहाजा इदारों को भी चाहिए कि वो खुद अपने तरीक़ाकार और रवैयों का जायज़ा लें ताकि तलबा के लिए सही मिसाल कायम कर मुआशरत और तालीमी लीडरशिप का किरदार इस तब्दीली में मरकज़ी हैसियत रखता है। नकली रवैयों के नफाज को रोकने के लिए हम कानून साजी और पॉलिसी साजी दोनों से इक़दामात देख सकते हैं। तालीमी इदारे दाखिली क़वानीन बनाएं जो नकल के मामलात में शफाफ हुए। हुकूमत सतह पर भी मावान तालीम को बेहतर बनाने और इम्तिहानी निज़ाम को मजबूत करने के इक़दामात ज़रूरी हैं ताकि सर्टिफिकेट्स और डिग्रियाँ हकीकी मेरिट की नुमाइंदा हो। मजबूत इदारा जाती फ्रेम वर्क से नकल के खिलाफ मुअस्सर मुज़ाहमत मुमकिन है। कुछ तलबा का कहना होता है कि मुकाबला बहुत ज़्यादा है और वसाइल कम हैं, इसीलिए वो नकल पर उतर आते हैं। हकीकी हल ये है कि तालीमी वसाइल तक रसाई को बढ़ाया जाए। ट्यूशन सेंटर्स, मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज और लाइब्रेरी की सहूलियात फराहम की जाएँ। जब तालिब इल्म को मदद मुयस्सर हो तो वो खुद एतमादी के साथ इम्तिहान का सामना करता है और नकल की तरफ कम रुजू करता है। मसावी मौक़े और वसाइल की फराहमी तालीमी इंसान का बुनियादी हिस्सा है। एक दिलचस्प नुक्ता यह है कि नकल आर्जी कामयाबी दे सकती है मगर ये तवील मुद्दत में नाकामी का सबब बनती है। जब एक तालिब इल्म ने नकली कामयाबी से काम लिया तो आने वाले इम्तिहानात, प्रोफेशनल लाइफ अमली कामों में इसके नकाइस खिलकर सामने आते। औक़त में मेहनत और उसूली मुताला ही वो बुनियाद बुनती है जो मुस्तक़िल कामयाबी के लिए ज़रूरी है। आर्जी नंबर शायद फौरी फ़ायदा दें मगर मुस्तक़बिल में नुकसान ज़्यादा होता है। नौजवानों को इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि इल्म खुद में एक कदर है, न कि सिर्फ इम्तिहान पास करने की एक मशक़ तालीम का। असल फ़ायदा सोचने, मसले हल करने और समाज में मुस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत होती है। जब तालिब इल्म ये सोच अपनाते हैं तो नकल का तसव्वुर मानी खो देता है, क्योंकि वो इल्म को अपने अंदरूनी मकसद के तौर पर देखते हैं। इल्म का मकसद ज़िंदगी में बेहतर फैसले और खिदमत इंसानियत है, न कि महज ग्रेड्स। अमली हिकमत अमलियाँ भी बहुत मददगार साबित होती है। तालिब इल्म को चाहिए कि वो इम्तिहान की तैयारी के लिए एक मुस्तहकम रूटीन बनाए, वक्त का बेहतर इस्तेमाल सीखे और कमज़ोर मौज़ूआत की शनाख्त करके उन पर इजाफी मेहनत करे। नोटिस बनाने, ग्रुप स्टडी करने और पिछले सालों के पर्चों का हल करने जैसी आदत तवील मुद्दत में बहुत फ़ायदा देती हैं। इसके साथ साथ इम्तिहान से पहले मुनासिब नींद और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी भी ज़हनी दबाव को कम करता है और नकल के रुझान को कमज़ोर करता है। एक और मौसर तरीका यह है कि तालीमी इदारियात लर्निंग को फ़रोग़ दें जहाँ तलबा अमली तजर्बात और तहक़ीक़ के ज़रिए सीखें। जब तालिब इल्म खुद किसी मसले पर तहक़ीक़ करके हल निकालता है तो इसके अंदर इल्म मजबूती से बैठ जाता है। ऐसी सूरत में इम्तिहान में नकल की ज़रूरत पड़ने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि तालिब इल्म
اپنی قابلیت پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ عملی سیکھنے سے طلبہ کی تخلیقی اور تنقیدی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی حقیقی مثال لیتے ہیں۔ ایک طالب علم جس کا نام احمد ہے امتحانات کے دوران ہمیشہ نقل کا سوچتا تھا کیونکہ وہ خود پر کم اعتماد محسوس کرتا تھا۔ اس کے اساتذہ نے اس کی خامیوں کی نشاندہی کر کے اسے مشاورت فراہم کی اور اسے گروپ اسٹڈی میں شامل کیا گیا۔ چند مہینوں کی مستقل محنت کے بعد احمد نے خود محسوس کیا کہ اس کی ذہنی صلاحیت بہتر ہوئی ہے اور وہ نقل کے بغیر کامیابی حاصل کرنے لگا۔ یہ مثال اس بات کی دلیل ہے کہ مناسب رہنمائی اور محنت سے نقل کا رجحان کم کیا جا سکتا ہے۔ نقل کے نتیجے میں قانونی اور پیشہ ورانہ نتائج بھی سنگین ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر نقل کرنے پر ڈگری منسوخ ہو سکتی ہے، سرٹیفکیٹ واپس لیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں ملازمتوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ نتائج نوجوان زندگی کے لیے طویل المدت نقصانات کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا کسی بھی قیمت پر عارضی فائدے کے لیے اپنی قانونی و اخلاقی شناخت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تعلیمی کامیابی کے متبادل راستے بھی موجود ہیں۔ مہارتیں سیکھنا، تجرباتی تعلیم اور انٹرنشپس کی تلاش کرنا۔ ان میں شامل ہیں اگرچہ روایتی امتحان اہم ہیں مگر عملی مہارت اور تجربہ ہمیشہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنی دلچسپیوں کو پہچانیں اور ایسی سرگرمیوں میں شامل ہوں جو انہیں عملی تربیت اور قابلیت دیں۔ اس طرح انہیں امتحانوں میں نقل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتا۔ اساتذہ اور ادارے نقل روکنے کے لیے مستمر تربیتی پروگرامز منعقد کریں۔ اخلاقی تربیت، وقت کی منصوبہ بندی اور امتحانی ٹیکنکس پر ورکشاپس طلبہ کو خود مختار بناتی۔ آواز طرح طلبہ کے لیے مشاورتی مراکز اور مینٹل ہیلتھ سپورٹ سسٹمز بٹھانے سے وہ اضطرابی کیفیت سے نکالے جا سکتے ہیں جو نقل کا سبب بنتی ہے۔ معاشرہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے اور طلبہ کی محنت کو سراہے۔ آخری تجویز یہ ہے کہ ہم سب الفاق امتحانی اقرار نامہ عہد کا نفاذ کریں جس میں طلبہ ایمانداری کی قسم کھائیں۔ یہ قسم نہ صرف رسمی ہوگی بلکہ ایک نفسیاتی اثر ڈالے گی۔ جب خود طالب علم قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ نقل نہیں کرے گا تو اس کی اندرونی مزاحمت مضبوط ہوتی ہے۔ اسکولوں میں اس قسم کے عہد کو روزمرہ کے معمول میں شامل کرنے سے ایک مضبوط ثقافت بن سکتی ہے جس میں ایمانداری کو عزت ملے گا، اور سوشل پلیٹ فارمز بھی اس شعور کو پھیلانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثبت بیانیے، ڈاکومنٹرز، تعلیمی پروگرامز اور نوجوانوں کی کامیابیوں کی کہانیاں نشر کر کے ہم نقل کے خلاف ایک فضا قائم کر سکتے ہیں۔ جب میڈیا میں محنت اور ایمانداری کی قدر دکھائی جائے تو نوجوان متاثر ہوتے ہیں اور وہ حقیقی قدروں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے خصوصی ورکشاپس ایک عملی اقدام ہے جن میں انہیں بچوں کی تعلیمی معاونت اور جذباتی مدد کے طریقے سکھائے جائیں۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نمبر کے دباؤ کی جگہ محنت، مستقل مزاجی اور اخلاقی تربیت کو ترجیح۔ جب گھر کا ماحول سپورٹو اور مثبت ہوگا تو بچے خود نقل سے دور رہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امتحان میں نقل نہ کرنا صرف ایک اخلاقی تقاضا نہیں بلکہ ہماری قوم کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ مستقبل کی بنیاد ہی محنت، نظم، رہنمائی اور مثبت ماحول کے ذریعے ہم نقل کے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ ہر طالب علم، استاد، والدین اور ادارہ اس جدوجہد کا حصہ بنے اور مشترکہ عزم اختیار کرے کیونکہ حقیقی کامیابی وہی ہے جو محنت، ایمانداری اور خلوص کے ذریعے حاصل کی جائے۔ عملی نکات برائے طالب علم: امتحان کی تیاری کے لیے ایک روزانہ شیڈول مرتب کریں۔ مشکل مضامین کے لیے مختص وقت رکھیں۔ نوٹس اور خلاصے بنائیں۔ پچھلے سالوں کے سوالات حل کریں۔ گروپ اسٹڈی میں حصہ لیں مگر نقل پر انحصار نہ کریں۔ امتحان سے پہلے اچھی نیند لیں۔ ڈیجیٹل جگہوں پر محتاط رہیں اور کسی بھی قسم کے نقل کے دباؤ کو اپنے اساتذہ اور والدین سے شیئر کران۔ معمولات پر مستقل عمل کرنے سے نہ صرف آپ امتحان میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے بلکہ آپ کی شخصیت میں بھی مضبوطی آئے گی۔ یاد رکھیں، علم وہ خزانہ ہے جو چوری سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایماندار اور محنت آپ کو حقیقی عزت اور پائیدار کامیابی دیتی ہے۔ آئیے مل کر یہ وعدہ مضبوطی سے کریں۔ سب